No, the answer is no. समझ में आया? देखिए, this x is an angle. If the angle is in this position or this position, रे का पोजीशन का मतलब ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूं मैं. ये दोनों पोजीशंस में फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, बाकी पोजीशंस में सेकंड इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड. सो द आंसर इज व्हाट? नो सॉल्यूशन. समझ में आया? अगर समझ में आया तो कुछ इशारा कर लीजिए, नहीं तो पूछिए कहाँ समझ में नहीं आया. रिपीट कीजिए ना, वो सेटिस्फाई कैसे कर रहा है. देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4. x इज एन एंगल, ऐसा नो. Which angles are present in this solution? So if you calculate the angles are pi by 4 यानी equal to 0 put किया तो pi by 4, pi plus pi by 4, 2 pi plus pi by 4, 3 pi plus pi by 4, so on. है ना? Yes. So if you plot all these angles using a angle diagram in trigonometry, so pi by 4 का corresponding ray position क्या होगा? ये वाला होगा. pi plus pi by 4 का corresponding ray position ये है. 2 pi plus pi by 4 का what is the corresponding ray position for 2 pi plus pi by 4? First quadrant. हाँ, वापस यही है ना. 3 pi plus pi by 4, 4 pi plus pi by 4 is this, 5 pi plus pi by 4 is this. So what are these solutions? These solutions can be represented by this position of the ray and this position of the ray, right? Yes. So similarly, what are the ray positions which satisfy the second equation? M pi by 2 plus pi by 8. So first m is equal to 0, pi by 8, 22 and a half, as well. M is equal to 1, pi by 2 plus pi by 8. M is equal to 2, pi plus pi by 8, this position. M is equal to 3, 3 pi by 2 plus pi by 8. If you put M is equal to 5, 5 pi by 2, sorry, if you put M is equal to 4, you're going to get 2 pi plus pi by 8. वापस यही पोजीशन आ रहे हैं, समझ रहे? वापस यही पोजीशन फिर रिपीट होते रहेगा. Can you see this? So these are the 4 positions of rays which satisfies the second equation. So the question is, what are the positions of rays which satisfies both the equations? Is there any simultaneous solution to both of these equations? सोहाग, समझ में आ रहे हैं? शयनदीप. Yes, sir. Deepanvita. Yes, sir. So the answer is no solution. Is it okay? That means Yes, if sin x is equal to cos x, sin 2x will never be equal to cos 2x. And if cos 2x is equal to sin 2x, then sin x equal to cos x will not happen. These two conditions can never be simultaneously satisfied. That's the concept here. Shall I go forward? Note किया? yes, sir. Good. Next. देखिए, you have to start your revision. Basics याद होना चाहिए सबको. Alpha and beta are complex numbers. Alpha and beta are complex numbers such that mod beta equal to 1. Modulus of beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta is equal to what?
0, 1 by 2, 1, 2. If alpha and beta are two complex numbers such that mod beta equal to 1. What does mod beta equal to 1 mean? It means that the distance of beta from origin is how much? Distance of beta from origin is 1 unit. 1 unit. That means beta lies on which circle? Beta lies on which circle? Is equal to 1. 1. Yes or no? Beta lies on a unit circle. Okay. Now alpha is any complex number. Alpha कुछ भी complex number है. Beta is a complex number which lies on this. That is for sure. Alpha is any complex number. Now for beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta is equal to what? That's the question. समझ रहे? So this is not a geometrical based question. This is an analytical question. ये बहुत standard question है. The thought that is needed for this question is one of the property of conjugates. Z bar is equal to mod Z whole square. A property. Revise किया? Anybody? Property revise किया ये? Z into Z bar will be equal to mod Z whole square. So if mod beta equal to 1, mod beta square is also equal to 1. So beta into beta bar is equal to 1 होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Clear? So अब देखिए mod of beta minus alpha by mod can be separated or division. Mod of इस 1 को मैं beta beta bar लिख सकता हूं. Can I do this? Yes, sir. That is equal to mod of beta minus alpha divided by mod of beta common लिया तो beta bar minus alpha bar. ऐसा ना? That is equal to mod of beta minus alpha by mod of z1 z2 is mod z1 into mod z2. Okay. That is equal to mod of beta minus alpha by mod beta already 1 है ना क्वेश्चन के हिसाब से. Mod of beta minus alpha whole bar लिख सकता हूं क्योंकि z1 bar minus z2 bar is z1 minus z2 whole bar. z1 bar minus or plus minus z2 bar is equal to z1 plus minus z2 whole bar. This is the property. Okay. And mod of z is same as mod of z bar. So ऊपर z नीचे z bar है, दोनों सेम है ना, so cancel होकर क्या हो जाएगा आंसर? 1 is the answer. Okay. Clear? Yes, sir. X is equal to 3 plus 4i. Then x power 4 minus 12x cube plus 70x square minus 204x plus 225 is equal to how much? So normally करना है तो आपको x power 4 x cube x square x and if you find all of this you can substitute and get the answer. But the question is there a better way? So you can think of it like this: x minus 3 is equal to 4i. So can you square it on both sides? So x square minus 6x plus 9 is equal to, what is 4i whole square? Minus 16. Minus 16.
So x square minus 6x plus 25 is equal to 0. Okay. So now what shall we do to go here? Any ideas? Shall we do squaring once more? So you can see that we have to go to fourth power. That's all. We have to go to fourth power. Okay. देखिए आपके पास दो ऑप्शंस है. देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 25 को चाहिए तो स्क्वायर कर सकते हैं और ऊपर वाले को स्क्वायर कर सकते हैं. कौन सा पसंद करिएगा? गट फीलिंग क्या बोल रहे हैं? इसको स्क्वायरिंग करें या इसको स्क्वायरिंग करें? फर्स्ट और सेकंड? Second. ओके. क्यों? क्योंकि सेकंड वाला इजी है ना, लाइटली. Yes, sir. देखिए आपका चॉइस है. देखिए if you do first one you're going to get all the terms. You get all the terms. But if you do this squaring you will not get all the terms. वो भी देखना पड़ेगा. ओके. सो सेकंड वाले को करके देखेंगे. x पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब इज इक्वल टू 625. ऐसा ओके. So x power 4 minus 12x cube can be written as 625 minus 36x square. Okay, clear? So can we replace these two? So 625 minus 36x square plus 70x square minus 204x plus 225 is equal to, you have to find, this is equal to this. So 625 plus, so 850 minus 204x, what is this? 3670, 34x square. Okay, clear है ना? Now what is the equation in x square? x square is equal to 6x minus 25, right? सही कि नहीं? x square is equal to 6x minus 25. You substitute here 34 times 6x minus 25 minus 204x plus 850. So 34 into 6 कितना है? 204x minus 25 into 34. How much is 25 into 34? ये भी शायद 850 है. देखिए. So do you see that everything is getting cancelled? The answer is 0. Okay. समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो आपका चॉइस है. देखिए हर एक स्टेप में आप सोच सकते हैं इसको स्क्वायरिंग करूं या इसको स्क्वायरिंग करूं. इसको स्क्वायरिंग करने के बाद आपको और करना पड़ा और आगे फोर्थ डिग्री को आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया. इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला रिलेशन यूज करके क्वाड्रेटिक को फिर रिप्लेस किया. यू गॉट द आंसर. अगर डायरेक्टली इसको स्क्वायर किया तो क्या आ देते? देखिए स्क्वायर इज एक्स पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 625 माइनस 12x क्यूब माइनस 300x प्लस 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So x power 4 minus 12x cube 36 plus this कितना है?
plus 86x square minus 300x plus 625 equal to 0. ओके, समझ रहे? अभी भी आपको एग्जैक्टली जो दिया है वो तो आया नहीं, उसको अभी भी आपको मैनिपुलेट करना पड़ सकते थे, राइट? सो वी हैड दिस एडवांटेज, इजीली हो गया आपको डायरेक्टली नहीं करके इसको स्क्वायर करने के से. ओके, शैल गो फॉरवर्ड. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Next, mod of z1 minus 1 is less than or equal to 1. Mod of z2 minus 2 is less than or equal to 2. Mod of z3 minus 3 is less than or equal to 3. Find the greatest value of modulus of z1 plus z2 plus z3. Find the greatest value of mod of z1 plus z2 plus z3. So this is a question based on geometrical interpretation. आप अगर मटेरियल थोड़ा सा देखा तो so you will see that modulus of z1 minus z2 represents what? Modulus of z1 minus z2 represents what? Anybody? तमन्ना बोल सकते हैं या अनिकेत? Distance between Z1 and Z2. Distance between Z1 and Z2. Okay. Now, what does this mean? Distance between Z1 and 1 is less than or equal to 1. इसका मतलब क्या है geometrically? What is 1? 1 is this complex number as well. My Z1 is such that distance between Z1 and 1 is less than or equal to 1. What is the region corresponding to this inequality? याद है लीनियर इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटी का रीजन कैसे प्लॉट करते हैं? हाउ डू यू प्लॉट इनइक्वालिटीज? हाउ डू यू प्लॉट इनइक्वालिटीज? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Plot equality. फर्स्ट प्लॉट इक्वालिटी. मॉड ऑफ z1 minus 1 इक्वल टू 1. z1 और 1 के बीच में डिस्टेंस एग्जैक्टली 1 होना चाहिए. कौन सा कर्व आएगा ऐसा लोकस का सॉल्यूशन? Circle and radius is 1. So equality is this curve, ऐसा ना? इस कर्व के ऊपर z1 है तो डिस्टेंस बिटवीन z1 and 1 will be exactly equal to 1. बट हमको अभी अंदर जाना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा लेस देन के लिए? बोल रहे कि डिस्टेंस 1 और 1 से छोटा होना चाहिए. इसका मतलब अंदर जाना है कि बाहर जाना है? अंदर जाना है. अंदर जाना है. So this region corresponds to Z1. Clear or not? Okay. Z1 is represented by this region. Okay or not? And what is Z2? Mod of Z2 minus 2 equal to 2. What does this represent? This represents a circle with what is the center? 2, 0. 2, 0 is the center and radius is equal to? Radius is 2 units. So शायद ऐसा आएगा ना इस बार? बड़ा सर्कल आएगा ना थोड़ा सा? ऐसा ना? So Z2 should lie inside this circle, okay? Clear or not?
This is the region corresponding to Z2. What is Z3? Modulus of Z3 minus 3 equal to 3. For Z3, the center is 3 and the radius is also 3. So we'll start from here only. Yes or no? Clear लग रहे हैं? So Z3 lies inside this circle, okay? समझ में आया? Yes, sir. So now the question is, what is the maximum value of Z1 plus Z2 plus Z3? देखिए यूजुअली एक इनइक्वालिटी है. देखिए मान लीजिए आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लीजिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2. Complex numbers can be thought of as vectors. Yes or no? Complex numbers can be thought of as vectors. So Z1 plus Z2 जो है आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करके निकाल सकते हैं. This is Z1 plus Z2. So mod Z1 plus Z2 is this length. Yes or no? Right? So यहाँ एक ट्राइंगल दिख रहा है. So mod of Z1 plus Z2 is always less than or equal to mod Z1 plus mod Z2. सही है क्या नहीं? ये वाला जो है mod Z1, ये वाला लेंथ mod Z2, ये भी mod Z2 हो जाएगा. Third side should always be less than the sum of the other two sides, right? Clear? Yes, sir. So similarly, you can extend this. Mod of Z1 plus Z2 plus Z3 is less than or equal to what? Mod Z1 plus mod Z2 plus mod Z3. सही है कि नहीं? अगर मान लीजिए आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3, राइट? आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है. So Z1 plus Z2 और Z3 के बीच में सेम लॉजिक अप्लाई किया तो यू गोइंग टू गेट दिस, राइट? समझ में आया? एंड इक्वालिटी कब काम करेगा? When will mod Z1 plus Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2? When will the third side be equal to the sum of other two sides? एक ट्रायंगल में थर्ड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स कब होगा? थोड़ा रेस्पॉन्ड करिए. When will the third side be equal to the sum of the other two sides? ऐसा हो सकता है? हाँ? कोलिनियर. हाँ, ट्रायंगल कोलैप्स हो जाना चाहिए ना, राइट? इसका मतलब Z1 एंड Z2 सेम डायरेक्शन में है तो तब होगा, राइट? क्लियर है? Mod Z1 plus Z2 equal to mod Z1 plus mod Z2 will happen if both Z1 and Z2 are in the same direction, okay? So आप देखिए, mod Z1 plus Z2 plus Z3 is less than or equal to mod Z1 plus mod Z2 plus mod Z3. So हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, जितना ज्यादा हो सकता उतना ज्यादा चाहिए. So इसको भी जितना ज्यादा उतना ज्यादा लेता हूं सबको, राइट? सबसे मैक्सिमम होना है तो. अब ध्यान दे दीजिए, Z1 is in this circle. So अलग अलग पॉइंट्स लिया तो इस रीजन पे अलग अलग पॉइंट्स लिया तो ऑरिजिन से अलग अलग डिस्टेंसेस पे होगा ना, राइट? डिफरेंट complex numbers in this region has different moduluses, right? What is the greatest possible modulus? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? That lies along diameter. हाँ, so कितना होगा? What is the maximum value of mod Z1? So 2. 2, बहुत अच्छा है. What is the maximum value of mod Z2? 4. 4, 4. What is the maximum value of mod Z3? 6, 6. So modulus of Z1 plus Z2 plus Z3 is always less than or equal to 12. So maximum value कितना है? What is the maximum value?
12 is the answer. Okay, समझ में आया? Yes, sir. Shall I go forward? Okay. Next. Z is equal to 1 plus cos 8 pi by 5 plus I sin 8 pi by 5. Find argument of Z. What is the argument of Z? That's the question. So theory क्या है हमारा? If Z is equal to R times cos theta plus I sin theta, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो this R is the modulus, this theta is the argument. ऐसा वही है ना कॉन्सेप्ट? Yes, sir. So for this complex number you have to find the argument. So what is the basic logic? We'll try to convert this into polar form. So once polar form is obtained, we can compare and get the argument. Logic clear है? जो करना चाहते हैं हम. So the first question is this in polar form? Polar form में है क्या नहीं? Directly polar form में है या नहीं? Yes or no? Is this directly in polar form? Directly 8 pi by 5 लिख सकता हूं मैं argument? नहीं ना, No, क्योंकि ये sir. 1 extra है ना, एक 1 extra है ना, so उस 1 को मैनेज करना चाहिए. That is the thing that you need to do. So 1 को कैसे मैनेज कर सकते हैं? 1 plus cos 8 pi by 5 का कुछ फॉर्मूला पता है आपको? 2 cos square 2 cos square theta by 2 pi by 5. प्लस I sin 8 pi by 5 को भी कुछ 4 pi by 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं. sin थीटा को आप 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 लिख सकते हैं ना, राइट? So 2 sin 4 pi by 5 cos 4 pi by 5 लिख सकते हैं. क्लियर? Now 2 cos 4 pi by 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है? cos 4 pi by 5 plus I sin 4 pi by 5. बाहर ये नंबर है ना, दिस इज ए नंबर. सो सम नंबर टाइम्स cos थीटा प्लस I sin थीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. यस और नो? So जो बाहर है, what is it? This is Modulus. this is the modulus. This is the यहाँ जो भी बचा है वो आर्ग्यूमेंट है. So what is the argument of Z? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना है? कितना? 4 pi by 5. 5. ओके, ये किया तो गलत हो जाएगा. आर्ग्यूमेंट इज नॉट 4 pi by 5 क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना. यहाँ ट्रिक क्या है, ध्यान दे दीजिए. व्हेन यू कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, बाहर जो R है वो पॉजिटिव होना चाहिए. समझ रहे? मॉडुलस से पॉजिटिव होना चाहिए ना, राइट? सब ध्यान से देख लीजिए. 4 pi by 5 कौन सा क्वाड्रेंट में है? 4 pi by 5 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट में है? सब सो रहे हैं. सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? है ना? 4 pi by 5 पाई का बहुत नजदीक है, राइट?
So 2 cos 4 pi by 5 पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? negative, So this is not directly R. So मैं क्या करता हूं, -2 cos 4 pi by 5 into minus cos 4 pi by 5 minus I sin 4 pi by 5 लिखता हूं. लिख सकता हूं क्या नहीं? एक माइनस से बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर लिया. ओके, सो क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि अब माइनस कॉस 4 पाई बाय 5 इज पॉजिटिव, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज आर. ओके, अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि cos थीटा प्लस sin थीटा नहीं है, ये माइनस माइनस एक्स्ट्रा आ गया ना. सो ये माइनस को मैं अंदर भेजता हूं, दोनों माइनस को अंदर भेजना है. कैसे भेजेगा दोनों माइनस को अंदर? सो माइनस cos थीटा को पाई प्लस 4 पाई बाय 5 लिख सकते हैं, प्लस आई इंटू साइन ऑफ पाई प्लस 4 पाई बाय 5. देखिए पाई प्लस 4 पाई बाय 5 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, सो दोनों से माइनस बाहर आएगा, राइट? सो दोनों माइनस को अंदर भेजना है तो पाई प्लस लिखना सबसे इजी है. ओके, समझ में आया या नहीं? yes, ओके, सो अब cos 9 पाई बाय 5 प्लस आई साइन 9 पाई बाय 5. ओके, क्लियर? So now this is in polar form. Okay, now this is in polar form. So what is the argument? Arguments क्या है? What is the argument of this? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए, तभी नींद नहीं आएगा अगर रेस्पॉन्ड किया तो. What is the argument of this complex number? नाइन पाई बाय 5 ऐसा लो, बट ऑप्शन में 9 पाई बाय 5 नहीं है, सो कौन सा मार्क करिएगा? आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 9 पाई बाय 5 का मतलब कितना है? -π/5. हाँ, 9 पाई बाय 5 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. इसको एक्स्ट्रा पाई बाय 5 किया तो ये 2 पाई हो जाएगा ना. बेसिकली 2 पाई से पाई बाय 5 कम है, इसका मतलब एक्स एक्सिस रियल एक्सिस से पाई बाय 5 पीछे है. सो इसको हम माइनस पाई बाय 5 भी बोल सकते हैं ना इस पोजीशन को, राइट? सो माइनस पाई बाय 5 इज द आंसर. क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. yes, sir, आगे जाए. और नोट किया? नोट किया? नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं. ठीक है, modulus of z minus I less than or equal to 5 and z1 is equal to 5 plus 3i. Find the greatest and least values of mod of iz plus z1.
Find the least and greatest values of mod of Iz plus Z1. देखिए modulus of z minus I is less than or equal to 5. So what is the meaning of the first condition? इसका मतलब क्या है? बोल सकता है इसका मतलब? इंग्लिश में इसका मतलब क्या है? Modulus of z minus I less than or equal to 5 का मीनिंग क्या है? Distance between Z and I less than equal to 5. So I तो यहाँ होगा ना, I तो 0,1 होता है ना. अब 5 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, राइट? ऐसा ना? फाइव रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, ओके? सही से पूरा टू द स्केल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट आप देख लीजिए. सो ये 0,1 5 5, ये 0,-4 होगा. दिस इज 0,6, ओके? सर्किल समझ में आ रहे? सो मेरा z क्या है? इस सर्किल के अंदर है, राइट? ओके ना? एंड z1 क्या है? z1 इज 5 प्लस 3i. सर्किल के अंदर होगा या बाहर होगा? ये पॉइंट बेसिकली 5,3 है ना? सर्किल के अंदर है क्या बाहर है? Can anybody tell me whether the circle is inside whether this point is inside the circle or outside the circle? So outside the circle. ऐसे बोला है. How are you telling that? लॉटरी है या कुछ करके किया? Sir, modulus is greater than 5. मॉडुलस तो ऑरिजिन से डिस्टेंस है ना. ये तो सर्किल का सेंटर ऑरिजिन नहीं है ना. सर्किल का सेंटर से मेजर करना है ना, या ऑरिजिन से मेजर करिएगा? सो 0,1 से डिस्टेंस कितना है? वो भी 5 से ज्यादा है क्या? नहीं, वो भी 5 से ज्यादा है. Yes, sir. सो आप देखिए, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये 5,1 होगा. डायमीटर के 5,3 लगभग यहाँ होगा. देखिए, आपको चाहिए तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं. देखिए, ये 0,1 है. 5 यूनिट्स है ना डिस्टेंस हर जगह. सो ये 0,6 होगा, राइट? सॉरी, क्या हो रहा है? 5,1 होगा. ये वाला -5,1, 0,6, 0,-4, ओके? क्लियर? सो 5,1 मतलब 5,3 यहां का ही होगा. दिस इज माय Z1. क्लियर? सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ Iz प्लस Z1? Iz का मतलब क्या है? कोई रिवाइज करके आया? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को I से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? Mirror नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को I से मल्टीप्लाई करने से वो कॉम्प्लेक्स नंबर 90 डिग्रीज घूम जाएगा. रोटेशन थ्योरम. ये क्लास में मेंशन किया था ना मैंने, या नहीं किया? डिड वी डू रोटेशन थ्योरम और नॉट इन द क्लास? कोई रिवाइज किया चैप्टर? अगर ये नहीं किया तो बोलिए, किया या नहीं किया मैंने क्लास में? No, sir. किया नहीं क्या? बोलना चाहिए ना.
ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड रोटेशन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार रोटेशन थ्योरम करके फिर वापस आएंगे, जैसा क्वेश्चंस में ही आपको कॉन्सेप्ट्स दिख जाएगा, वो कॉन्सेप्ट करके हम आगे जा सकते हैं। ओके, सो रोटेशन थ्योरम क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए, दिस इज ए वे टू सॉल्व ए वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन। कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा, लेट अस टेक ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, एंड आपको बोला जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है, ये जो रे जो है, इट हैज बीन रोटेटेड थ्रू, it has been rotated about origin through an angle of theta. रोटेट कर सकता हूं क्या? नहीं रोटेट कर सकता हूं। सो ऑब्वियसली z जो है कहीं और जाएगा ना, z डैश, राइट? सो इफ यू नो z and theta, can you find z dash? That's the question. If you know z and theta, can you find z dash? That's the question. Okay. So इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अल्फा मानते हैं, मान सकता हूं क्या? नहीं। एंड z का मॉडुलस को r मानता हूं। अगर z का मॉडुलस r है तो z डैश का मॉडुलस क्या होगा? इसका भी मॉडुलस r ही होगा, क्योंकि जस्ट रोटेट हुआ था ना, ऑरिजिन के ऊपर रोटेट किया तो ऑरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, राइट? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So, can I write z as r times e power I alpha? लिख सकता हूं कि नहीं? ऑयलर फॉर्म, z का मॉडुलस r, आर्ग्यूमेंट अल्फा। z डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? r टाइम्स e पावर i टाइम्स अल्फा प्लस थीटा लिख सकता हूं। Yes, sir. तो इसको मैं r टाइम्स e पावर i अल्फा इंटू e पावर i थीटा लिख सकता हूं, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके। सो z डैश इज इक्वल टू r टाइम्स e पावर i अल्फा क्या है? z इंटू e पावर i थीटा। ओके, z डैश इज इक्वल टू z इंटू e पावर i थीटा। समझ में आया? देखिए बहुत सिंपल लग रहा है, बट ये बहुत पावरफुल थ्योरम है। सो क्या बोल रही है, z डैश चाहिए तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, z को किससे मल्टीप्लाई करना है? e पावर i थीटा से मल्टीप्लाई करना है, राइट? क्लियर? सो इफ यू मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ e पावर i थीटा, व्हाट हैपेंस? इंग्लिश में बोलिए, व्हाट हैपेंस? If you multiply a complex number z with e power I theta, what happens? बोलिए, कोई ना कोई, दीपान्विता बोलिए। What happens if you multiply z with e power I theta? अनिके, हाँ बोलिए बेटा। Z rotated by theta. In the counter clockwise direction, okay? समझ रहे? Okay? So, आपको पता है I is nothing but e power I pi by 2, सही है क्या नहीं? I क्या है? e पावर I pi by 2 है ना? I का मॉडुलस कितना है? I का मॉडुलस 1 एंड आर्ग्यूमेंट कितना है? pi by 2 है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So, if you multiply any complex number with I, इसका मतलब effectively आप क्या कर रहे हैं? You are multiplying with what? E power I pi by 2. That means what is happening to z? Z क्या होगा? Z gets rotated through an angle of 90 degrees. 90 Clear है? degree. इतना ही। ठीक है, आप याद रखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को I से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? वो 90 डिग्रीज घूमेगा। कौन सा डायरेक्शन में?
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. ओके, ये क्लियर है? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड रोटेशन थ्योरम. क्लियर है? समझ में आया? Yes. Yes, sir. देखिए इसका दूसरा केस, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, इसका r है. नाउ I don't want you to rotate this, I just want to extend this. इसी डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, मॉड्यूलस चेंज कर रहा हूं. ये r है तो ये k टाइम्स r, मतलब मॉड्यूलस को डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम्स किया या हाफ किया, समथिंग. समझ रहे? So if you just want to change or scale up the modulus, what should you do? देखिए z is equal to r into e power i theta होगा, राइट? अगर ये थीटा है तो so z dash is equal to क्या होगा? kr into e power i theta, ऐसा होगा, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है. So z dash is simply equal to k times z. समझ रहे? Yes, sir. इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ मॉड्यूलस चेंज होगा, आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होगा. इसका मतलब उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा. क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. सो रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ मॉड्यूलस चेंज होगा, ई पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट चेंज होगा. अगर k से भी मल्टीप्लाई किया, ई पावर आई थीटा से भी मल्टीप्लाई किया, तब क्या होगा? रोटेट भी होगा और थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाएगा. क्लियर हो ना? ओके, अब देखिए एक पॉइंट है 3,1, हो सकता है कि नहीं? ये 3,1 पॉइंट और ऑरिजिन को यूज करके आप एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं? कैन यू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर? कैन यू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. ए बी सी डी. अब आपका क्वेश्चन है सी का कोऑर्डिनेट्स निकालिए. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी? ओके, सो मुझे क्या करना है? रोटेशन थ्योरम यूज करके देखिए, दिस इज ये पॉइंट 3,1 का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आई, ऐसा ना? दिस इज माई z. ओके, क्लियर? So now if you want to bring this B onto C, B को C तक लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए इसको रोटेट किया तो ऐसा इस तरीके से जाएगा ना रोटेशन में, राइट? एंड दिस इज माय C. सो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 3 प्लस I को पहला 45 डिग्री घुमा के, इसके बाद मैग्नीट्यूड को √2 टाइम्स किया तो काम चल जाएगा या नहीं? स्क्वायर में आपको पता है ना, ये a है तो डायमीटर क्या होगा? डायगोनल क्या होगा? ये √2 होगा या नहीं? ऐसा ना? Yes, sir. So if you want to get this B to the position of C, what should you do? You have to rotate this by 45 degrees and then extend it √2 times. ऐसा ना? So if this is a z dash is equal to, can I say that it is z times क्या मल्टीप्लाई करना है? पहले रोटेशन के लिए बोलिए, π/4 रोटेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? E to the power I pi by 2. I π/4, okay, 45 degrees, and you also have to multiply it with √2. √2. बहुत अच्छा है. सो हो गया हमारा काम. सो z का मतलब 3 प्लस आई, इसको e पावर i π/4 का मतलब क्या है? cos π/4 प्लस i sin π/4, राइट? cos π/4 का मतलब 1/√2 प्लस i
बाय √2 into √2, √2 कैंसिल हो गया, सिंपली 3 + i into 1 + i मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 + 4i, ऐसा ना मल्टीप्लीकेशन आता है आपको। सो z' is 2 + 4i, इसका मतलब c का कोऑर्डिनेट्स क्या है, c का कोऑर्डिनेट्स 2, क्या है, 4. हो गया। अगर d का कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो क्या करना चाहिए, 90 डिग्रीज घूम रहे हैं ना, ऐसा ना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहे, सो सिर्फ 3 + i को किससे मल्टीप्लाई करना है 90 डिग्रीज घुमाने के लिए, i से मल्टीप्लाई करना है, मतलब e power i pi/2, वो शॉर्टकट है ना, और जल्दी आपको पता है e power i pi/2 इज नथिंग बट i, ऐसा स्पेशल केस है ये 90 डिग्रीज। सो -1 + 3i, सो सिंपली -1, 3 हो गया, सिंपल लग रहा है। समझ में आया? Yes, sir. और अब आगे जाएंगे, अभी इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ iz प्लस z1। ओके, देखिए यहां मुझे जो लग रहा है, मुझे जो आइडियाज आ रहे हैं, iz का मतलब क्या है, z को आप 90 डिग्रीज घुमाना पड़ेगा, राइट। z क्या है, इस सर्किल के अंदर कोई भी एक पॉइंट, राइट, इस सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट को 90 डिग्रीज घुमाना चाहिए, इसके बाद z1 ऐड करके मॉड लेना चाहिए, राइट। सो आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, मॉडलेस ऑफ आई, मान लीजिए मैं कॉमन ले लेता हूं, आई कॉमन लिया तो z प्लस z1 बाई आई हो जाएगा, ऐसा ना, राइट, दैट इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ आई बाहर कर सकता हूं इंटू मॉडलेस ऑफ z माइनस आई z1 हो गया, ठीक है, 1/i इज नथिंग बट माइनस आई z, माइनस आई, मॉडलेस ऑफ आई तो 1 है ना, ऐसा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज सेम एज दिस, बट आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछे, ऐसा क्यों किया मैंने, इज दिस फॉर्म बेटर देन दिस, इज दिस फॉर्म बेटर देन दिस, यस, क्योंकि z1 एक फिक्स्ड नंबर है, ये बीच में माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, z एंड iz1 के बीच में डिस्टेंस, राइट, ओके, iz1 का मतलब क्या है, ये तो 5,3 तो 5 + 3i है, iz1 का मतलब सिंपली क्या होगा, -3 + 5i, ऐसा ना, -3 + 5i, राइट। देखिए ये 5,3 है, इसको i से मल्टीप्लाई किया, सो पॉइंट क्या आया, घूम गया, 90 डिग्री घुमा, सो -3, 5 तक आ गया, ओके, सो -3 + 5 सर्किल के बाहर है कि अंदर है, देखिए सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितना आ रहा है, ऑन द सर्कल, वेरी गुड, रेडियस मतलब डिस्टेंस 5 आया, विच इज सेम एज रेडियस, तो इसका मतलब इसको रोटेट करने पे 90 डिग्री सर्किल के ऊपर आ गया, राइट। सो दिस इज माय व्हाट, iz1 एक फिक्स्ड पॉइंट है, राइट, iz1 एक फिक्स्ड पॉइंट है जो सर्किल के ऊपर है, ये z क्या है, दिस इज ए वेरिएबल पॉइंट इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल, राइट। सो इस पॉइंट से
इस सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट्स है, सबसे नजदीक वाला पॉइंट क्या होगा, सबसे दूर वाला पॉइंट क्या होगा? कोई भी एक सर्किल है, इसके ऊपर एक पॉइंट है P। इस सर्किल के अंदर सारा पॉइंट्स में इस पॉइंट से सबसे नजदीक कौन होगा, सबसे दूर कौन होगा? सबसे नजदीक तो यही पॉइंट होगा, राइट? एंड सबसे दूर वाला पॉइंट क्या होगा? डायमेट्रिकली ऑपोजिट वन। Yes, sir. तो सबसे लीस्ट डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस? लीस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट 0. गुड. व्हाट इज द 0. लार्जेस्ट डिस्टेंस? 10. 10. 10. बहुत अच्छा है, हो गया क्वेश्चन। देखिए नया कुछ सीखे है इस क्वेश्चन में या नहीं? देखिए बहुत सिंपल रोटेशन थ्योरम। आप एक क्वेश्चन खुद से पूछना है, इसको मैं ऐसा क्यों किया, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस विच हैज हैपेंड। देखिए इसको ऐसा करने के लिए मन क्यों किया, मैं एक बार बोल रहा हूं। यहां z के साथ I है, z इज अ वेरिएबल पॉइंट है, सुनो, z इज अ वेरिएबल पॉइंट। सो वेरिएबल पॉइंट को 90 डिग्री घूमना इजी है या फिक्स्ड पॉइंट को 90 डिग्री घुमाना इजी है? Fixed point को easy है। हाँ, फिक्स्ड पॉइंट को 90 डिग्री घुमाना इजी है, राइट? क्लियर है क्या? अगर आप देखिए डायरेक्टली करना चाहते हैं तो भी, देखिए डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हैं। देखिए IZ का मतलब क्या है? इस सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट को आप 90 डिग्री घुमा रहे हैं, राइट? ऐसा सो इसके अंदर सारा पॉइंट्स को आप 90 डिग्री घुमाए तो ये इफेक्टली ये सर्किल ही 90 डिग्री घूम जाएगा, राइट? सही क्या नहीं? कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं? इमेजिन कर पा रहे हैं? सर और एक बार रिपीट कीजिए ना। देखिए आप इमेजिन कर लीजिए, IZ का मतलब क्या है? Z को आप 90 डिग्री घुमा रहे हैं। Z इज एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सो इस सर्किल के अंदर सारा पॉइंट्स को आप 90 डिग्री घुमा दिया, इसका मतलब इफेक्टिवली सर्किल ही घूम गया 90 डिग्री। ऐसा ना? यस सर। सो सर्किल अगर 90 डिग्री घूमता है, इसका मतलब सेंटर 90 डिग्री घूम जाएगा। सेंटर जो 0,1 है अभी क्या हो जाएगा? -1,0 सेंटर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. If Z lies inside a circle with 0, 1 as center and 5 as radius, IZ जो है वो क्या करेगा? 1,0 सेंटर हो जाएगा, -1,0 सेंटर हो जाएगा उसका। सुनो, यस सर। सो आप ऐसा सोच सकते हैं, यहाँ देखिए छोटा सा ड्रॉ करता हूं। अब मेरा सर्किल जो है ये सेंटर हो गया, -1,0 सेंटर हो गया और 5 रेडियस हो गया, ओके? एंड IZ प्लस Z1 का मतलब क्या है? IZ माइनस ऑफ माइनस Z1। चलो अब Z1 5,3 है तो माइनस Z1 क्या होगा? -5,-3। सो -5,-3 सर्किल के ऊपर आ गया, देखिए जैसा हमारा प्रीवियसली हुआ। -5,-3 सर्किल के ऊपर आ गया। समझ में आया नहीं? इसके बाद फिर वो ही कॉन्सेप्ट है, 0 and 10 इज द आंसर। ओके, Let's see. आगे जाओ। नेक्स्ट, one of the concepts that you need to learn is logarithm of a complex number.
यूजुअली रियल नंबर्स को हम लॉग ले सकते हैं ना, ऐसा log x to the base a. This a is called the base, x is called the argument. So logarithm, if x is a real number, it is defined only if x is greater than 0. ऐसा ना? लॉगरिथम के अंदर नंबर पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस क्या होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस नॉट इक्वल टू 1. दिस इज द कंडीशन फॉर रियल लॉगरिथम्स. ओके, रियल लॉगरिथमिक फंक्शंस. ओके, क्लियर? अब लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर गया तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ -1 चाहिए आपको, ये निकाल सकता है क्या? नहीं. रियल नंबर्स वाला चैप्टर में ये मीनिंगलेस है, यू कैन नॉट डिराइव दिस. ओके, log -1 डज नॉट एग्जिस्ट. इसका इतना ही मतलब है log -1 इज नॉट रियल. हम जब तक रियल नंबर्स में हैं, इफ वी से दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ऐसा ना? क्लियर? So now you want to find the logarithm of a complex number. Let z is equal to कोई भी complex number को r times e power i theta लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? नहीं. Yes, sir. So log of z is equal to log of r into e power i theta. Can you do this? That is equal to log of r plus log of e power i theta. टू द बेस ई, टू द बेस ई करेंगे, जो भी कर रहे हैं हम टू द बेस ई कर रहा हूं. ओके, सो दिस इंप्लाइज log z टू द बेस ई इज नथिंग बट log of r टू द बेस ई प्लस, देखिए नीचे भी ई है ऊपर भी ई है, आई थीटा बाहर आ जाएगा ना, सो आई थीटा log e टू द बेस ई 1 हो जाएगा. सो हो गया. देखिए समझ में आ रहे? कॉम्प्लेक्स नंबर आया. देखिए, सो आप log ऑफ -1 चाहिए. सो क्या करना है? log ऑफ -1 इज नथिंग बट टू द बेस e मान लिया तो -1 को ऑइलर फॉर्म क्या है? 1 into e power i pi. ऐसा that is equal to log 1 to the base e plus log e to the power i pi to the base e. 0 plus i pi. सो हो गया. देखिए, i pi इज द आंसर. समझ में आया नहीं? कुछ रेस्पॉन्ड करिए. अगर समझ में नहीं आया तो फिर एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आया तो थोड़ा सा बोलिए. कितने लोग को समझ में आया? Yes, sir. समझ में? देखिए, कैन सी दैट log of -1 is not real, it is an imaginary number, right? It is an imaginary number. इसलिए हम रियल नंबर्स में does not exist बोलते हैं. क्लियर? ओके और नॉट? और भी कुछ बचा है, इसलिए यह ये समझ में आया तो और एक और स्टेप है. Shall I go forward? एक है, we have something called general value of logarithm. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लॉगरिथम्स के लिए देयर इज एन एक्स्ट्रा थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखिए, z इज इक्वल टू r इंटू ई पावर आई थीटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है सर ना? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज थीटा, दिस इज r, है सर? सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a notation other than this also.
फॉर एग्जाम्पल r इंटू ई पावर 2 प्लस थीटा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये भी ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या या अलग है? सेम डिस्टेंस पे 2 प्लस थीटा घूमने के बाद भी वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना? सर यस सर 4 प्लस थीटा घूमने के बाद सेम सर. So if you have z is equal to r into e power I theta, the general value of z can be written as r into e power I times 2n pi plus theta. समझ रहे? थीटा के साथ जितना भी 2 पाई से ऐड करो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. क्लियर? सो अब लॉग अप्लाई कर लीजिए. ln z इज इक्वल टू ln r प्लस आपको i टाइम्स 2n पाई प्लस थीटा आएगा. समझ रहे? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ओके. सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम का कितना वैल्यूज है? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम्स कैन बी देयर? यूजुअली एक रियल नंबर का लॉगरिथम वैल्यू भी यूनिक होता है ना. log 2 to the base 10 is a single number or many numbers? सिंगल नंबर सिंगल नंबर है ना. बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लेन में लॉगरिथम का बहुत सारा वैल्यूज हो सकते हैं. समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल log 2 जो है ln2 is it a unique number or a set of numbers? ln2 नॉर्मली हम जब तक रियल नंबर्स पे है ln2 है सिंगल नंबर. ln2 का वैल्यू आपको पता है ना. यू कैन कैलकुलेटर में अगर ln2 टाइप किया तो एक नंबर तो आएगा, राइट? But in complex numbers, ln2 is equal to ln2 plus I times 2n pi. Can you see this? ln z is equal to r का मतलब क्या है? ln mod z. 2 का mod कितना है? ln2 plus I times 2n pi. क्योंकि थीटा 0 है ना. 2 का थीटा 0 है, so 2n pi बचेगा. So ऑर्गन प्लेन में, if this is the organ plane, ln2 का कितना वैल्यूज होगा? देखिए ये ln2 है, रियल नंबर वाला ln2 है ये. बट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में बहुत सारे ln2s होगा. समझ रहे? कुछ नया सीखा है? कुछ नया लग रहे हैं? Okay or not? Yes, sir. Yes, sir. क्या नया सीखे हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी लॉगरिथम्स ले सकते हैं. सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लॉगरिथम्स का एक स्टैंडर्ड लॉगरिथम, अगर वो 2n पे नहीं लिखा तो वो एक सिंगल लॉगरिथम है. अगर जनरल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम चाहिए तो आपको यू हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ general values of logarithms. Okay, clear है ये? समझ आ रहे? एक क्वेश्चन करके आगे जाएंगे. Shall we do a question on this? यस सर. ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा सा नया चीज. फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 minus I whole power minus I. Find the real part of 1 minus I whole power minus I. So देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं. अगर a प्लस आई बी है तो a रियल पार्ट होगा, b इमेजिनरी पार्ट होगा ना, राइट? So 1 minus I whole power minus I, this is not in standard form.
सो आप इसको स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसके बाद रियल एंड इमेजिनरी करना है. सो कैसे करेंगे? लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई होल पावर माइनस आई. ओके, सो फर्स्ट 1 माइनस आई को आप ऑयलर फॉर्म में लिख सकते हैं. कैन यू राइट 1 माइनस आई इन ऑयलर फॉर्म? मॉडुलस रूट 2 होगा, राइट? e पावर i टाइम्स व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? 1 कमा माइनस 1. कौन सा क्वाड्रेंट में होगा 1 कमा माइनस 1? फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना? माइनस पाई बाई 4. माइनस पाई बाई 4. बहुत अच्छा है. सो 1 माइनस आई होल पावर माइनस आई. ओके, सो ln z इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस आई होल पावर माइनस आई. सो ये माइनस आई बाहर आ जाएगा. सो माइनस आई इंटू ln ऑफ 1 माइनस आई. ओके, that is equal to minus I times ln of 1 minus I को आप root 2 into e power minus I pi by 4 लिख सकते हैं. ऐसा, that is equal to minus I times ln root 2 plus ln e power I pi by 4 जो है minus I pi by 4 हो जाएगा. that is equal to minus I into minus I. so minus pi by 4 minus into minus pi by 4 minus I ln root 2. okay, that is equal to minus pi by 4 minus I by 2 ln 2 बोल सकता हूं. this is ln z. so z is equal to e to the power minus pi by 4 minus I by 2 ln 2. ऐसा ना? calculations okay, that is equal to e power minus pi by 4 into e power minus I ln 2 by 2. okay, that is equal to e power minus I minus pi by 4 into e power I theta का मतलब क्या है? e power I theta is nothing but cos theta plus I sin theta. e पावर माइनस आई थीटा का मतलब cos थीटा माइनस आई sin थीटा, ऐसा ना? सो e पावर माइनस आई थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos ln 2 by 2 माइनस आई sin ln 2 by 2. ओके, so that is equal to e power minus pi by 4 cos ln 2 by 2 minus I times e power minus pi by 4 sin ln 2 by 2. So what is the real part? What is the imaginary part? दिख रहा है आपको imaginary part क्या है, real part क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो क्या करना है. पहली बार थोड़ा सा दिक्कत होगा, नेक्स्ट टाइम से आप कर सकते हैं. ये 2-3 बार प्रैक्टिस किया. समझ में आया? Okay. But I will continue in the next class. Okay. Stop here. Bye, beta. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay.